Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So today I'm here to talk about the top 20 internet slangs you should definitely know about part 2. तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 5 ट्रेंडिंग इंटरनेट स्लैंग्स की बात कर चुकी है. So if you have missed that video, then you can definitely go and watch it from the link mentioned in my description section of this video, and even you can view it from the link that is available to you on the top right corner of the screen. Now without further ado, let's continue with today's video. तो आज का हमारा पहला इंटरनेट स्लैंग और इस सीरीज का 6th इंटरनेट स्लैंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है TTYL. Now this is a very commonly used internet slang जो मैं और आप सब यूज़ करते हैं, and I think you would be knowing its full form. TTYL stands for talk to you later. तो it is same as saying goodbye और see you later. ठीक है, तो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी इसको यूज़ करते हैं टू इम्प्लाई अ गुड बाय. ठीक है, नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन इंटरनेट स्लैंग आई वुड से विच इज़ यूज्ड व्हेन एंडिंग अ मैसेज और कॉन्वर्सेशन टू समबडी ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, तो अगर हमें कुछ काम आ जाता है और हम उस चैट को लीव कर रहे होते हैं तो फिर हम उनको बोल देते हैं कि आई सी यू लेटर, आई टॉक टू यू लेटर. ओके, एंड दिस इंटरनेट स्लैंग implies or is sent by the sender when he or she is leaving the conversation, plus he or she is also trying to imply that they will talk to the person at a later point of time. तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे हमारी एक बार के लिए ही बात हो रही है तो हम उनको नहीं बोलने जाएंगे टॉक टू यू लेटर. हम ऐसे लोगों से को ये इंटरनेट स्लैंग भेजते हैं जिनसे हम बाद में किसी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में फिर से बात करेंगे. ठीक है, so this is what talk to you later means. Now looking into the example. Now for example जो picture है उसमें whoever the man is, he is trying to send a message that need to go for cycling. TTYL means I need to go for my cycling, my exercise, I'll talk to you later, right? So this is how it is used. Coming to the 7th internet slang and the second internet slang for today, that is ASAP. Now, this is a very common used internet slang and it stands for as soon as possible. ठीक है, so it is let me tell you that this internet slang is used in informal context in both spoken as well as written communication. Okay, and if we look into the definition, it is a slang which is used to express the urgency to complete a specific task in the shortest time possible. जब हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी और ज़रूरत में चाहिए होती है, ठीक है, तो वी यूज़ दिस इंटरनेट स्लैंग दैट इज़ ASAP. ठीक है, हमें कोई टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट कराना होता है या करना होता है तो वी यूज़ ASAP. तो ये बहुत से फॉर्मल कम्युनिकेशंस में भी लोग आजकल यूज़ कर रहे होते हैं. लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल. Now teacher is saying here that all those students who were absent yesterday for the Viva are requested to submit a compensatory assignment for the same ASAP. Because maybe टीचर को नंबर चढ़ाने होंगे, एंट्रीज करनी होंगी स्टूडेंट्स की, so she or he is asking for a compensatory assignment to be submitted by the absentees as soon as possible. ठीक है, तो इस तरीके से हम ASAP का यूज़ करते हैं. Moving on to the third internet slang for today, that is EOD. Now what does EOD stands for? तो EOD के काफ़ी सारे फुल फॉर्म हैं, बट यहाँ पे जो इंटरनेट स्लैंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंड ऑफ डे. इसका मीनिंग एंड ऑफ डिस्कशन भी होता है, काफ़ी लोग उस तरीके से भी यूज़ करते हैं, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा एंड ऑफ द डे. ठीक है, तो एंड ऑफ द डे इज़ टिपिकली यूज टू सेट अ डेडलाइन फॉर अ टास्क, राइट, एंड विच शुड बी completed by end of the day. सपोज आज का दिन है तो आज रात तक ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन इंटरनेट स्लैंग टिपिकली यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट टू रिफर टू द एंड ऑफ अ बिजनेस ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ द डे. जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है, एंड वी वांट अ सर्टेन रिपोर्ट. ठीक है, कोई रिपोर्ट या कोई डेटा चाहिए, वी आस्क द पर्सन टू डिलीवर इट टू अस बाय एंड ऑफ द डे. तो ये बेसिकली टिपिकली जो इसमें टाइम चलता है वो 5 PM का चलता है. ठीक है, बिजनेस आवर्स चलते हैं.
तो बहुत सारी जगह 5 PM चलता है, और अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको रात का मिडनाइट टाइम भी रख देते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़र भी कर सकता है, बट टिपिकली ये 5 PM या फिर मिडनाइट ही होता है, ठीक है। नाउ लुकिंग इनटू द एग्जांपल ऑफ EOD, बॉस इज सेइंग टू एम्प्लॉय सेंड मी ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय EOD, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए बॉस को एम्प्लॉय से, सो ही सेइंग कि बाय एंड ऑफ द डे या आज ऑफिस ख़त्म होने के पहले आई वांट देम, सेंड इट टू मी, ठीक है। सो दिस इज हाउ EOD इज यूज्ड. Moving on to the next internet slang is IDC. Now, what does IDC stands for? Any guesses? Okay, so it means I don't care. ठीक है, जब ये जो इंटरनेट स्लैंग है ये हम नॉर्मली टेक्स्ट में, चैटिंग में यूज़ करते हैं टू कन्वे समवन कि आई डोंट केयर अबाउट द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये तुम्हारे बारे में आई डोंट केयर, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करो आई डोंट केयर अबाउट इट, तो इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन. इट इज़ अ स्लैंग यूज्ड इन चैट टू कन्वे द रेसिपिएंट that you don't care about them, something they said, or the subject of the conversation. तो ये किसी भी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए हो सकता है, ठीक है. या तो आप सामने वाले की कोई केयर नहीं करते हो तब आप बोलते हो, ठीक है. और या तो वो जो भी बोल रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है तब आप आई डोंट केयर यूज़ कर लेते हो. या तो जो सब्जेक्ट की कॉन्वर्सेशन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन किसी की बात हो रही है और उसके उस थर्ड पर्सन के लिए आप के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, आप कुछ केयर नहीं करते, उसको जो करना है तो यू से आई डोंट केयर, ठीक है. तो वो किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है. बेसिकली कहीं कहीं पे ये रूड भी माना जाता है क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट स्टिल पीपल यूज़ इट कैजुअली ऑल्सो, तो कुछ भी इसका मीनिंग निकाल सकता है. मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल. सॉरी. I don't care about the number of questions you solve per day. Just get good marks this time. ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आप एक दूसरे में बात करते हैं तब बोलते हैं कि मैं कितने भी क्वेश्चंस लगाऊं पर डे, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस मुझे इस बार अच्छे नंबर चाहिए एनी हाउ. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग IDC, विच फुल फॉर्म इज आई डोंट केयर. ओके, नाउ मूविंग इनटू द 10th and the last for today, that is YOLO. Now YOLO, I like this internet slang very much. Okay, so इसका full form होता है you live only once, या sorry you only live once, ठीक है. तो this is an internet slang which is I would say similar to a phrase. जो phrase है वो है carpe diem. Carpe diem means seize the day, इस दिन को जियो, ठीक है. प्रेजेंट मोमेंट को पहले पूरा जी लो, उसके बाद फ्यूचर की चिंता करो. सो दिस इज वॉट इट सिग्निफाइज, इट इम्प्लाइज, ठीक है. सो योलो इम्प्लाइज दैट यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉल टू लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, ठीक है. तो अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, इट इज़ अ पॉपुलर स्लैंग यूज टू एक्सप्रेस द व्यू दैट वन शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट मोमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया. एंड पता है जो ये वर्ड है उसको आजकल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एक ऐसे इंटरनेट स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं जो हमारे उन चीज़ों को जस्टिफाई करता है जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, जैसे कि कोई एडवेंचर्स होते हैं, ठीक है. पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग, बहुत सारे जो भी एडवेंचर्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी लाइफ का रिस्क होता है, तो वी से ना कि अरे एक ही बात तो ज़िंदगी मिलती है जीने के लिए, तो डू इट, है ना. तो उन एक्ट्स को, उन बिहेवियर्स को हम जस्टिफाई कैसे करते हैं, इस इंटरनेट स्लैंग को यूज़ करके कि हम एक ही बार तो जीते हैं, कर लेते हैं, है ना. सो लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल. नाउ समवन इज आस्किंग टू दिस गर्ल दैट हाउ डिड यू डिसाइड टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप. So she answers, I always wanted to try things that seem strange and fun. YOLO. Just convinced myself and went out. I literally had a blast. तो सोलो ट्रिप पे गए, भाई एक ही बार जीते हैं, वाई नॉट ट्राई इट, है ना. तो अगर आपको भी कभी ट्राई करना है तो जस्ट गो एंड ट्राई बिकॉज YOLO. So this is how YOLO is used. I hope you enjoyed this session today and I'll see you in the next video coming soon. So thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel if you haven't subscribed. So see you in the next video. Till then, take care, stay safe and yes, happy learning.